Dear students, in the previous lecture we had started with some common diseases which are occurring in humans. We had discussed about the disease that is typhoid caused by Salmonella typhi. We have also discussed about the pneumonia which was caused by Streptococcus pneumonia. The third disease that we discussed was common cold and it is caused by a virus called rhinovirus. The fourth disease that we discussed was amoebiasis which was caused by Entamoeba histolytica. Now we are going to discuss about the fifth such disease, and that disease is also caused by a protozoan. Just like amoebic dysentery. Amoebic dysentery was also caused by a protozoan. Which protozoan? Entamoeba histolytica. So same way, we are also going to discuss about one more such important protozoan based disease, and that is known as the malaria. Often we have heard about the name of this disease, that malaria is caused by mosquitoes. But actually, malaria is a disease which is caused by a protozoan, and the name of the protozoan is Plasmodium. Plasmodium is an organism which causes this disease. So Plasmodium is having different species. That is, there are different species of Plasmodium. For example, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium malaria. Plasmodium vivax, falciparum and Plasmodium malaria. So these three are some common species of Plasmodium and they are responsible for causing different types of malaria. So malaria is also of different types depending upon the causative agent. But the most common, serious and the threatening, life-threatening Plasmodium is the Plasmodium falciparum. The Plasmodium falciparum is causing the malaria which is quite serious and fatal. Fatal, that is, it can lead to the death. So here we are going to discuss that how does the disease occur in humans. So the organism Plasmodium. So now we need to understand the life cycle of the Plasmodium. So we are going to discuss about the life cycle of Plasmodium. तो ये जो प्लाज्मोडियम है ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन, इसके उसे अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मोडियम को दो होस्ट जो है वो उनका है मॉस्किटोस और दूसरा जो होस्ट है वो है ह्यूमंस. ये दोनों होस्ट अवेलेबल हो तभी ही प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सकता है. पैथोजन है खुद की लाइफ स्पेंड करता है, दैट इज, और एक है ह्यूमंस. तो इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले जब एक मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है वो बाइट करती है जब कोई ह्यूमन को. तो व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन, ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब कोई ह्यूमन को बाइट करता है तो क्या होता है कि उनके सलाइवरी ग्लैंड को एक तरह के इन्फेक्टेड पैरासाइट्स रिलीज कर देता है जिसे कहते हैं स्पोरोजोइट्स. तो स्पोरोजोइट्स जो है वो प्लाज्मोडियम का है. स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब सेल्स हैं जो रिलीज कर दिए जाते हैं किसमें? ह्यूमन ब्लड में. अब ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा, पर अब इस ब्लड में क्या है? स्पोरोजोइट्स है. वो पैरासाइटिक पैथोजन फॉर्म्स हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं. अब 30 मिनट्स तक सर्कुलेट होने के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो जाके एंटर हो जाते हैं इनटू द सेल्स ऑफ द लीवर. कहां पे एंटर हो जाते हैं? जाके लीवर सेल में. तो एक लीवर सेल में एंटर होता है, काफी बार मल्टीप्लाई होता है, काफी डिवाइड होता है, फिर नेक्स्ट लीवर सेल में जाता है.
दूसरे लीवर सेल में भी वो स्पोरोजॉइड गया, इट मल्टीप्लाइड, इट डिवाइडेड, मल्टीपल स्पोरोजॉइड्स फॉर्म हुए और ऐसे ऐसे करते करते वो काफी लीवर सेल्स को डैमेज कर लेता है। आफ्टर डैमेजिंग सर्टेन लीवर सेल्स, some of these sporozoites will leave the liver and enter into your RBCs. That is, they are now going to attack which cells? RBCs. तो RBC पे अटैक करके वो RBC को क्या कर देते हैं? रप्चर कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब RBC को ब्रेक मतलब एक RBC यहाँ पे ब्रेक नहीं होने वाला, जितने सारे स्पोरोजॉइड्स थे वो सारे आरबीसीज पे अटैक करेंगे और ये बहुत सारे आरबीसीज जो है वो अब रप्चर होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो आरबीसीज जब ब्रेक होते हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं हेमोजॉइन। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हेमोजॉइन, वो जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो इसकी वजह से हमें आ जाता है क्या? चिल्स एंड फीवर, मतलब काफी ठंड लगने लगती है एंड वी ऑल्सो सफर फ्रॉम फीवर फॉर अबाउट 3 to 4 days कंटिन्यूअसली, बिकॉज टिल दिस टाइम व्हाट हैज द ऑर्गेनिज्म डन? ऑर्गेनिज्म हैज डैमेज सम सेल्स ऑफ लीवर, ऑर्गेनिज्म हैज एंटर्ड इनटू योर आरबीसीज, organism is breaking down your RBCs and it is producing a toxic substance called hemozoin. So this toxic substance hemozoin जब रिलीज हुआ तो meanwhile क्या हो गया? हमें कौन से symptoms आ जाते हैं? Fever and sudden chills, that is cold for 3 to 4 days. अब ये आरबीसी में जाके वापस डिवाइड होता है पर यहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और हमारे आरबीसीज में 2 तरह के गैमेट्स बना देता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये हम देखेंगे इन द डायग्राम। हमारे आरबीसी में एंटर हुआ, कई आरबीसीज को ब्रेक कर दिया, कई सारे आरबीसीज में ये एक और चीज करता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 सेल्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मतलब अब हमारे ब्लड में क्या सर्कुलेट हो रहा है? ऐसा प्लाज्मोडियम जिसमें 2 गैमेट्स बन चुके हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं। मीनवाइल एक दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आता है। जब वो हमें बाइट करता है तो वो जो मेल और फीमेल गैमेट हमारी बॉडी में बने थे, वो मेल और फीमेल गैमेट्स को कौन ले लेता है? दैट मॉस्किटो व्हेन इट बाइट्स अस। तो एक दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आया, उसने हमारा ब्लड सक किया तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी मेल और फीमेल गैमेट सेल्स बन चुके थे वो प्लाज्मोडियम के। तो मेल और फीमेल गैमेट्स अब किस में चले गए? इन द मॉस्किटो। अब वो जो मॉस्किटो में चले गए हैं तो अब क्या होगा? मॉस्किटो में से मतलब उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में वो चले जाते हैं। तो पैरासाइट जो है वो अब किस में एंटर हो रहा है? इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो में जाके वो अपना फर्दर डेवलपमेंट करता है। फर्दर डेवलपमेंट मतलब मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन। याद रखो, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन मॉस्किटो में हो रहा है। फ्यूजन हो जाने पे अब वापस क्या फॉर्म होने लगेगा? स्पोरोजॉइट्स। ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो वापस कहाँ चले जाएंगे? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब वापस ये मॉस्किटो जो है वो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। अगेन हेल्दी पर्सन में क्या उसने इंट्रोड्यूस कर दिया? अगेन उसने इंट्रोड्यूस कर दिए स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स वापस हमारे ब्लड में से कहा जाएंगे? लीवर में। वापस लीवर में से कहा जाएंगे? आरबीसी में। तो ये जो साइकिल है वो क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। पर हमें जो है, हमें तो हाफ ऑफ द साइकिल ही हो रही है और मॉस्किटो में बाकी की हाफ ऑफ द साइकिल हो रही है। तो हमें जो हाफ ऑफ द साइकिल हुई, हमें तो हमारे सिम्टम्स मिल ही गए, चिल एंड फीवर एंड डैमेज टू द लीवर। मतलब वी आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, बट मलेरिया हम सफर कर रहे, पर प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों की जरूरत है, क्योंकि आधी साइकिल वो किसमें कंप्लीट कर रहा है? ह्यूमंस में, और रेस्ट ऑफ द साइकिल किसमें कंप्लीट कर रहा है? मॉस्किटोज में। तो ये हम देखेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो। So let us again understand the life cycle of the Plasmodium. As we said that there were 3 species of Plasmodium: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium malaria. Out of them, the malaria which is caused by Plasmodium falciparum was the most serious and the fatal one.
So now we are discussing that how this cycle of the plasmodium is going to run. So as we discussed before, when a plasmodium, that is when a mosquito bites a human, when a mosquito which is already infected or already has the plasmodium within its body is going to bite the human, the infectious form which is known as the sporozoites, these sporozoites are going to be released inside the human. क्या होने वाला है, जब एक इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्किटो आपको बाइट करता है, तो वो जब बाइट करता है तो वो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजोइट्स थे, स्पोरोजोइट्स क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है, उसे कहते हैं स्पोरोजोइट्स। तो ये जो स्पोरोजोइट्स है वो एंटर हो जाते हैं कहाँ पे, आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में एंटर हो जाने पर ये आपके ब्लड में ट्रैवल करके थोड़े ही टाइम में एंटर हो जाएंगे कौन से ऑर्गन में, लीवर में। तो लीवर में ये स्पोरोजोइट एक सेल में एंटर हो गए। एक sporozoites, they will be undergoing asexual reproduction. तो asexual reproduction जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लीवर सेल में स्पोरोजोइट्स एंटर हुए हैं, नेक्स्ट सेल कि एक वो स्पोरोजोइट्स है उसमें से डबल हो चुके हैं, क्योंकि एक लीवर सेल में न्यूट्रिएंट्स मिलने पे वो क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन गए हैं। बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन जाने के बाद वो लीवर सेल को क्या कर लेते हैं, बर्स्ट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, रप्चर कर लेते हैं, और रप्चर हो जाने पर वो सारे स्पोरोजोइट्स रिलीज कहाँ हो गए, आपके ब्लड में। तो ब्लड में वो रिलीज हो गए। ऐसा एक लीवर सेल अफेक्ट नहीं होने वाला, कई सारे लीवर सेल्स एक साथ अफेक्ट हो जाएंगे और कई सारे लीवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारे स्पोरोजोइट्स अब रिलीज हो चुके हैं आपके ब्लड में। अब आपके जब ब्लड में वो रिलीज हो गए हैं तो कई सारे स्पोरोजोइट्स जो हैं वो आपके आरबीसीज में एंटर हो जाएंगे। आरबीसी में एंटर हो जाने के बाद वो वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, मतलब आरबीसी में भी कई सारे स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये सारे जो स्पोरोजोइट्स हैं जब वो आरबीसी को ब्रेक करते हैं तो अभी मैंने कहा क्या रिलीज होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजाइन। और हीमोजाइन रिलीज होने पर हमारी बॉडी क्या फील करती है, सडन कोल्ड, सडन फीवर, चिल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। कई ऐसे भी स्पोरोजोइट्स होंगे, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है दे विल बर्स्ट द ब्लड सेल, ब्लड सेल को बर्स्ट कर देंगे और फिर वो एंटर होंगे किसमें, दूसरे आरबीसी में। ऐसा करते करते वो एक के बाद एक कई सारे आरबीसीज को डैमेज कर लेते हैं, उन्हें बर्स्ट कर लेते हैं। कई ऐसे भी स्पोरोजोइट्स होंगे जो आरबीसी में जाके गैमेट्स बना देंगे। तो यहाँ पे स्पोरोजोइट विल बी फॉर्मिंग गैमेट, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे दो गैमेट्स बन चुके हैं। अब ये गैमेट वाला जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में तो सर्कुलेट हो ही रहा है। अब क्या होगा, नाउ अनदर फीमेल मॉस्किटो विल अराइव एंड इट विल बाइट यू। जब वो फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट कर रहा है तो क्या होगा, आपके ब्लड में वो जो गैमेट्स बने हुए थे वो गैमेट्स अब कहाँ पे चले जाएंगे, इनटू द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जब ब्लड सक करेगा तो आपके वो जो गैमेट बने थे वो कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो में। मॉस्किटो के गट में जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन किनका, ये जो गैमेट्स बने थे वो गैमेट्स फ्यूज होंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ किसमें, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वापस ये जो है वो गट से मूव होके सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स में वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कई सारे पैरासाइटिक फॉर्म मतलब के स्पोरोजोइट्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारे स्पोरोजोइट्स अब कहाँ पे हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब वापस ये मॉस्किटो जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, वापस वो स्पोरोजोइट्स किस में रिलीज करेगा, हेल्दी पर्सन के ब्लड में। वापस वो स्पोरोजोइट्स जो है वो एंटर किस में होंगे, उनके लीवर में, लीवर से ब्लड में, ब्लड से आरबीसीज में, आरबीसी में वापस गैमेट बनाएगा, वापस वो रिलीज होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू रह सकती है।
ये साइकिल टर्मिनेट कब हो सकती है? ये तभी टर्मिनेट हो सकती है जब वेक्टर मतलब के मॉस्किटोज किल कर दिए जाए. If the number of mosquitoes are reduced or removed, only then and then the life cycle of the plasmodium can be terminated. Right? तो आपको तो मलेरियल सिम्टम्स किस में आ जाते हैं? प्लाज्मोडियम की आधी जो साइकिल चल रही है उसी में आपको तो मलेरिया के सिम्टम्स हैं ही. वेदर अनदर मॉस्किटो बाइट्स यू और नॉट, आप मलेरिया के जो भी सिम्टम्स है वो एग्जिबिट करोगे. क्यों? क्योंकि आपके कई सारे आरबीसी भी डैमेज हैं और आपके लीवर सेल्स भी डैमेज हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से आप मलेरियल सिम्टम्स एग्जिबिट करोगे. तो प्लाज्मोडियम को खुद की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए. आधी साइकिल वो किस में कंप्लीट कर रहा है? ह्यूमन होस्ट में. और आधी साइकिल किस में कंप्लीट कर रहा है? मॉस्किटो होस्ट में. आर यू गेटिंग इट? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर डिसीज. नाउ आफ्टर मलेरिया which was caused by a protozoan like plasmodium, next we are going to discuss about the diseases which are caused by helminths. Helminths means small worm-like organisms. So the first disease that is caused by the helminth is the ascariasis. The ascariasis is a disease in which the organism is Ascaris, which we commonly say as roundworm. Ascariasis belongs to phylum Ascalminthis. Okay, so we have studied 2 such worm-like organisms, Ascalminthis and Platyhelminthes. So Ascaris belongs to Ascalminthis. This is an intestinal parasite, that is, organism resides in the intestine, and when the organism enters into your body, the symptoms which are being observed are, the first one is internal bleeding, pain in the muscles, fever, anemia, blockage of intestinal passage. Anemia means decrease in the amount of hemoglobin and less number of RBCs. That will be observed. So blockage of the intestinal passage is also observed. The eggs of the parasite are going to be excreted along with the feces from the infected person. So when the infected person is going to eliminate the waste from the body, these small eggs of the parasites are going to be present in the fecal matter. Now this fecal matter is ultimately going to merge with the soil or with the water or even with the plant. So all these things get infected. And so when a person comes in the contact of such an infection or such an contamination, the another healthy person will also get a chance for the Ascaris to enter in a body. So Ascaris will be transported to another person in the form of the eggs. So eggs which are being released from the excretory matter of an infected person are responsible for causing the damage, causing the infection to the another healthy person. So here I have written that a healthy person acquires this infection through the contaminated food or water. So contaminated food or water will be responsible for causing the disease. Next such disease is called elephantiasis or filariasis. Elephantiasis is also known as filariasis. It occurs by a filarial worm, and this filarial worm is known as Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. It is also an helminth disease. Now this organism is going to enter into your lymphatic system, and it goes and resides in the lower limbs of the body, lower lymphatic vessels of the lower limb, and resides there for several years. So it is not an acute infection. Instead, it is a chronic infection. Chronic means it will take a very long time to develop. So the organism goes and resides in your lymphatic vessels of the lower limb. Once it goes and resides in the lymphatic vessels, it stays there for a very long period of time and slowly blocks the functioning of the lymphatic vessels.
as the lymphatic vessels get blocked, the lymph is not getting a proper place for getting transmitted, and therefore all of the fluid gets accumulated in the lower parts of the body. Now all the lymphatic fluid gets accumulated in the lower part of the body. This causes the inflammation of the lower part of the body. So there will be swelling. पूरा swell हो जाएगा क्योंकि वो जो fluid है, it is not getting enough place to travel. Due to which वो नीचे के जो lower limb का जितना भी part है, उन सब part में fluid, lymphatic fluid क्या हो जाता है? Accumulate हो जाता है. And it is even very damaging because genital organs are also affected in the disease. तो जो reproductive organs है वो भी swell हो जाते हैं, वहां पे भी infection रहता है. And how the pathogen will be transmitted? यहाँ पे सबसे important चीज है that transmission is by the bite of the female mosquito. So carrier of the Wuchereria is also a female mosquito which when bites, it transmits the worms, that is the eggs of this Wuchereria bancrofti into the another person, and thereby the disease begins in the another person. The symptoms will be observed in this case would be severe inflammation in the lower parts of the body, as you can see the diagram in your textbook.